کیجیے گا جی الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پہ حدیث نمبر 1300. طیبہ are you sure this is the حدیث؟ ایسی بات یہ کیونکہ یہ اگر کوئی غلطی کر رہی ہیں تو آپ ہی کی طرف سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے چلیے جی. عن ابی بکرہ مرفوعا، ابی بکرہ سے مرفوعا روایت ہے من اجل سلطان اللہ اجلہ اللہ یوم القیامہ، جس نے اللہ کی دلیل کی عزت کی اللہ اس کی روز قیامت عزت کرے گا. تھوڑا سا اوپر کیجئے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں نا تو کبھی نوٹ کیجئے گا کہ سب سے جو کم ترین اور کمزور حوالہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈر، اور دوسرا کہتا ہے کانوں سے مکھی اڑا دو. تو بات یہ کہ مجھے تو اس حدیث سے یہ سمجھ آئی ہے جس نے اللہ کے حوالے کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے روک لیا، وہ ڈر گیا. ٹھیک ہے نا، اللہ اس کو قیامت کے دن عزت دے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم اللہ کے لیے کوئی وقار، کوئی بھرم، کوئی وزن دیتے ہی نہیں. ٹھیک ہے. بہرحال اور یہ بھی بات درست ہے جو یہ جہاں پہ یہ جو شارح نے لکھی کہ قرآن و حدیث اپنا ضروریات کا خیال رکھے بغیر قرآن و حدیث کی تمام شکوں پر عمل پیرا ہوگا تو وہ اللہ کے ہاں تنظیم وہ پائے گا. جناب دیکھیں، ہاں جی ہمارا پنکھا چل گیا. چلیے جی اگلی حدیث پر آ جائیے. اچھا جی، مردہ زمین آباد کرنے کا اجر و ثواب. عن جابر بن عبداللہ مرفوعا، جابر بن عبداللہ سے مرفوعا روایت ہے من احیا ارضا میتۃ لہ بها اجر، ایک مردہ زمین یعنی جو زمین نہ کاشت پہ آ رہی تھی نہ اس پر کوئی آبادی تھی، اور کیا ہے کہ اس نے اس کو آباد کر دیا تو اس کو اجر ملے گا. وما اکلت منہ العافیۃ فلہ بہ اجر، اور جو اس میں سے رزق کے متلاشی ہوں گے، جو اس میں سے کھائیں گے تو اس کے بدلے بھی ان کو اجر ملے گا. بات اصل میں یہ ہے کہ زمین کی مرکزی حیثیت ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے پیٹرو ڈالر جو ہے کولیپس کیا ہے، اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ دنیا کی اکانومی جو ہے ایک دن میں کہاں پہ جاتی ہے اور ایک دن میں کہاں پہ آتی ہے. یہ جو پیٹرول کے ساتھ گیم ہو رہی ہے اور سٹاک مارکیٹ اوپر چلتی ہے تو اربوں ڈالر کا ٹیکا لگ جاتا ہے اور اربوں ڈالر جو ہے نا وہ نیچے آ جاتے ہیں. آپ نے یہ دیکھا نا. آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ جہاں جہاں پہ فائنینشیل کولیپس ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے جرمنی میں ہوا تھا پاس میں، پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم کالج کے ڈیز میں تھے اس وقت ہوا تھا انڈونیشیا میں. اور اس طرح سے اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کی مروجہ منی ہوتی ہے، جیسے ڈالر کہہ لیں یا جو آپ کہنا چاہیں پیپر منی کہہ رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اس کی کروڑوں یا ہزاروں کے اندر بھی ایک ڈبل روٹی بھی نہیں آتی. کھانی تو انسانی ڈبل روٹی ہوتی ہے نا. تو ہوتا کیا اس وقت جو ہے نا ایک چیز جو ہے نا اکانومسٹ کہتے ہیں جس کی ویلیو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے، وہ زمین رہتی ہے. رہنے کے اعتبار سے بھی، اس کے اندر جو ہے فصل اگانے کے اعتبار سے، خوراک انسان کو چاہیے ہوتا ہے، اور انسان نے اپنے ساتھ جو مویشی رکھے ہوتے ہیں ان کی زندگی کے اعتبار سے بھی. یہی وجہ ہے کہ آپ کبھی نوٹ کیجئے گا کہ ریسیشن آئی ہے کئی مرتبہ. تو 2008 میں آئی، لوگ آپ کو یاد ہوگا 1500 گاڑیاں جو ہے نا دبئی ایئرپورٹ پہ کھڑی کر کے تو بھاگ گئے. آپ نے ابھی بھی دیکھا ہے کہ جو جنگ کی وجہ سے حالات بنے ہیں، اور ریسیشن کہتے ہیں 2018 اور 2019 میں آ چکی ہے. صرف دنیا میں لوگ اس کا لفظ اس لیے نہیں بولتے کہ جو ہے نا بہت ہی ڈر وغیرہ شروع ہو جائے گا. اینی وے، تو بات اصل میں یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے اندر جو کسان ہے نا، کم از کم اپنی ویری جو لیونگ جو اس کی ہے نا اس کے اندر وہ جو ہے، یا جو زمین کا مالک ہے نا وہ کبھی بھی نہیں دھوکہ نہیں کھاتا، یا کبھی بھی اس کی طرف سے کمی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو لوگ، یہ سارے کے سارا کھیل ہے اربن شہری آزادی کا، آبادی کا. جہاں پہ آپ جو ہے سولائزیشن سے دور ہو جاتے ہیں وہاں پہ ان ریسیشنز کا، ان چیزوں کا کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے کہ بم بھی وہاں پہ نہیں مارے جاتے، بم بھی سارے کے سارے یہیں پہ مارے جاتے ہیں جہاں پہ آبادی ہوتی ہے. اینی وے، تو چلیے لائیے ذرا دیکھتے ہیں. اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں ہمارا پنکھا نہیں چل رہا یار. اللہ کرے چل جائے. ٹھہریے ذرا میں دیکھ. اور اچھی بھلی گرمی ہو گئی ہے. ہاں جی چلیے. اچھا، تو ذرا دیکھیے گا. اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی آباد کاری کو بڑی اہمیت دی ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نے زمین کو آباد کیا اس کے لیے اجر ہے. یہاں پہ ذرا دیکھیے گا. اور یہ جو زراعت ہے اس کے اوپر اللہ کے رسول نے اس کی تعریف بھی کیسے کی کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا، ایک مسلمان جو ہے نا وہ اگر درخت لگاتا ہے یا پودا لگاتا ہے، اس میں سے جو بھی کھاتا ہے اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اور جو بھی اس میں سے چراتا ہے اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے. ولا
यज़रउहु अहदुन इल्ला कान लहु सदक़तन अला यौमिल क़ियामह, यानी उससे जो भी फायदा उठाएगा उस आदमी के लिए वो सदका बनेगा। अच्छा, अब आ जाइए जमीन। ठीक है, ये सही है, जमीन बड़ी इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए, लेकिन ये भी सही है कि जमीनों पर ही कब्जे होते हैं। ये सारे के सारे जो इस वक्त खर्क जजीरे के ऊपर जो वो ला रहे हैं उसको, अपने ट्रूप्स उतारा है, पैरा ट्रूप्स उतारा है जो यूएस, वो इसीलिए उतार रहा है ना कि जमीन के ऊपर कब्जा किया जा सके। जो फिलिस्तीन की जमीन को अपनी जमीन समझ के, तो उसके ऊपर जो एक्सपेंशंस हो रही हैं, जो सेटलमेंट्स हो रही हैं, जो वेस्ट बैंक के अंदर जो है वो हो रही हैं, वो सब का सब जमीन में नाजायज कब्जा है। अच्छा, ये बात तो एक हो गई, छोड़िए इस बात को। आप मुझे बताएं, आपका प्लॉट थोड़ी देर तक जो है ना उसके अंदर कोई चौकीदार आप नहीं रखे या आप उसको यूज ना करें, 4 दिन गुजरते नहीं और आपको पता चलता है जी उसमें नाजायज कब्जा हो गया और उसका जाके जो है ना स्टे ले लिया गया है। ठीक है, सारी चीजें आ जाए, एक और चीज भी ले आइए, सीधी सी मैं आपको बात बता रही हूँ, बहनों को जो है तरके से महरूम कर दिया, खत्म, बात हो गई। अब जरा देखिएगा, ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अन अन यअला इब्न मुर्रता अस्सक़फ़ी, यअला इब्न मुर्रा अस्सक़फ़ी से रवायत है, क़ाल समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, वो कह रहे थे, मन अख़ज़ अर्दन बिग़ैरि हक़्क़हा, जिसने जमीन ली अपने हक के बगैर, कुल्लिफ़ा, वो उसको मुकल्लफ किया जाएगा, उसको बाउंड किया जाएगा, अन यहमिला तुराबहा इलल महशर, तो उसको बाउंड किया जाएगा कि उठाओ इसकी मिट्टी को और महशर तक लेके जाओ, इतनी जमीन जो है इसकी जिम्मेदारी लो। बात ये होती है नाजायज कब्जे हम कर लेते हैं, वरना आप ये देख लीजिए कि मुसलमान का माल, जान और इज्जत और हरमत दूसरे मुसलमान पर हराम है। एक मुसलमान के माल की कितनी हुर्मत है कि जो जितनी नाजायज जमीन पर कब्जा करेगा उसे ये अजाब दिया जाएगा कि वो इस मकबूजा हिस्से की मिट्टी को कंदा दे। तो क्या इतना वजन उठाना किसी के बस की बात है? लेकिन उठाना तो होगा। चलिए जी, गैर बाप की तरफ निस्बत करने का वबाल। अन अब्दुल्लाह इब्न आमिर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह बिन उमर जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हुए कहते हैं, मन अद्दा इला गैरि अबीही, जिसने अपने बाप के अलावा, अद्दा, दावा किया अपने बाप के अलावा किसी और को, यानी अपने बाप को तो बाप नहीं माना, किसी और को कह दिया कि तुम मेरे बाप हो, फलन यरूहा राहियता अल जन्ना, तो उसको ना सुंघाई जाएगी खुशबू भी जन्नत की, वरी हुआ यू जदू मिन मसीरतिन, हालांकि उसकी जो खुशबू है वो 70 सालों की मसाफत से महसूस की जा रही होगी, तो उसको अल्लाह जन्नत की खुशबू भी नहीं सुंघाएगा। ऊपर आगे चलिए जरा देखें, फिर मैं आपको समझाती हूँ, ये जरा देखें। अच्छा, जो आदमी किसी वजह से अपना नस्ब बदल लेता है, सोचिए जरा, रीजन सोचिए। एक तो ये होगा कि इस बंदे के तरके में से, उसके विरसे में से हिस्सा लेने के लिए। अच्छा, कोई और सोचिए रीजन। एक आदमी अपना नस्ब बदल लेता है, मैं आपको बहुत एक तकलीफ से बात बताने लगी हूँ। जब यजीद ने जो है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कहा कि तुम जाओ और सैयदना हुसैन को तुमने कत्ल करना है, ठीक है, तो इसने यजीद को, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से कहा कि तुम दर हकीकत जो हो, मेरे बाप अबू सुफियान जो था उसने जिना किया था जाहिलियत के जमाने में तुम्हारी माँ के साथ, तो तुम हो तो हराम के, लेकिन तुम हो मेरे भाई। तो एक मिनट, हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, यूं ना जाना। हाँ, आपको पता है ना कि 5 मिनट पहले आ जाएगा, 3 o'clock होने से पहले, ठीक है। चलिए, अच्छे, तो हम बात ये कर रहे थे कि और इसने उसको कहा कि एक तो तुम, यानी ये जो सारी है, मेरा मालो मता और मेरी खिलाफत की अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम मेरे लिए भाई हो, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। यानी ये और भी कोई रीजन सोचिए, मैं ज्यादातर बातें नहीं करना चाहती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम अपने मौजू को आगे लेके चलो। बाकी इस तरह से है, बेटा कह देना या किसी को अंकल कह देना या अभी कह देना या अम्मी कह देना, इसके साथ बात नहीं बदलती, लेकिन इंसान किसी वजह से अपना नस्ब बदल दे। अच्छा, फिर कई दफा क्या होता है, झगड़े ऐसे होते हैं जिसकी वजह से इंसान जो है वो अपना नस्ब बदल देता है, ठीक है, गुस्से की वजह से, नफरत की वजह से, दुनियावी मोनेटरी फायदे की वजह से, तो अल्लाह ने कहा कि उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। चलिए आगे चले। अन इब्न उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन इंतफा मिन वलदिही लियफ़दहहु फ़िद दुनिया, अच्छा, फदहा फदहा हुल्लाहु यौमल क़ियामति अला रुऊसिल अशहादी क़िसासुन बिक़िसासिन, जिस आदमी ने अपने बेटे को दुनिया में बदनाम करने के लिए उसका बेटा होने की नफी कर दी, आग कर दिया, तू मेरा बेटा ही नहीं है, अल्लाह उसे रोजे क़यामत हाजिरीन के सामने रुस्वा करेगा। और यही बराबर बराबर का बदला है। आज ही बड़ी तकलीफ दे बात मेरे सामने आई, एक बच्ची ने अपनी मर्जी की शादी की,
दूसरी शादी की उसने। और हुआ क्या कि वालिद शदीद नाराज थे, फिर वो बच्ची को शौहर ने भी छोड़ दिया, ज़ाहिर है उस पर पहले बीवी का प्रेशर था। और दूसरी बात है कि नहीं, उसने भी जिम्मा रखा। अच्छा, इधर वालिद जो है इन्होंने भी कहा नहीं अब तुमने की थी और तुम जाओ अब जो मर्जी करो, उन्होंने भी उसको छोड़ दिया। वो बेचारी अकेली मुसीबतें सहती रही, फिर उसके ऊपर जब बहुत तकलीफ हुई, 2-3 मिसकैरेजेस हुए, यानी सारे मामले खराब होते गए, हत्ता कि उस बेचारी ने एंड पे खुदकुशी कर ली। ठीक है। तो उस पर जब मैंने ये बात सुनी तो बहुत ही तकलीफ पहुंची, तो मेरे साथ ही कहा कि बात ये होती है, माँ बाप का अल्लाह ने रिश्ता ऐसा रखा होता है, आप उनके नफा और नुकसान से वो नहीं हो सकते हो, गाफिल नहीं हो सकते हो। और माँ बाप के लिए ये जायज नहीं कि अपनी औलाद को अबेंडन कर सके। चले शौहर ने कर दिया तो कर दिया। अच्छा ये भी था कि जहाँ पे ये बात होती थी कि उसके शौहर से बात करे, तो वहां पे वालिद साहब बड़े आराम से कान दबा लिया करते थे कि नहीं तुमने खुद अपनी मर्जी की थी, और अगर मैंने तुम्हारे शौहर से कहा तो मेरी थोड़ी सी भी इज्जत नहीं रह जाएगी। यानी मेरी इज्जत बरकरार रखने के लिए उसने, शौहर जो है वो, उसने दामाद के सामने अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए उसने बेटी को दाव पे लगा लिया। फिर दुनिया से चली गई तो उसमें भी अपने आप को कहने लगे वो वाले साहब कि इसने अपनी मर्जी की थी अब भुगते जाके। मैं कहती हूँ ऐसे चलता नहीं है। अभी आपको याद होगा पिछले दिनों हुमैरा असगर वो जो अदाकारा थी, हमने उस पर प्रोग्राम भी किया था हबलुल्लाह में। उसके जब पता चला कि उसकी 9 महीने से उसकी लाश सड़ रही थी और वालिदैन को इत्तला दी गई, तो भाई ने फौरन ही बहुत ही उसे कहती, उसने कहा हमने तो उसको बड़ी जमाने का छोड़ दिया हुआ था क्योंकि बुरे रास्ते पे चल पड़ेगी। इट डजंट वर्क दिस वे। ऐसा नहीं होता। आप अपनी औलाद, अपने वालिदैन, अपने बहन भाई, अपनी खूनी रिश्तों के नफा नुकसान से गाफिल नहीं हो सकते, वो जितने भी बुरे क्यों ना होंगे। जब भी आपका फर्ज बाकी रहेगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा कि तुम्हारे वालिदैन शिर्क भी करेंगे तो वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, तो ठीक है आप उनकी ये बात ना मानना, लेकिन ये है कि उनका दुनिया में उनके साथ अच्छा सलूक करना। तो जान बात ये होती है, लड़ाई करना सबसे आसान काम होता है, और सबसे बढ़ के आसान, उससे भी बड़ा आसान काम होता है आग कर देना। ऐसा होता नहीं है, और ना ही इंसान की जिम्मेदारी ऐसे पूरी होती है, अल्लाह हमें माफ फरमाए। तो याद रखिएगा, औलाद के ऊपर औलाद का अपने वालिदैन पर सबसे बड़ा हक ये है कि उसकी कमजोरी और उसके जो बैड डेज हैं उसमें वालिदैन साथ दें। अल्लाह ताला रहम फरमाए। चले जी नेक्स्ट पे आइए। अमानत में रखी गई चीज की जमानत किस पर है? सिर्फ आखिरी हदीस पढ़ूंगी आज, थोड़ी सी मुझे जल्दी है। हमारा सर्टिफ टॉक का आपको चल ही रहा होगा, इसमें से आप बहुत सारे लोग, आप लोग भी रजिस्टर्ड होंगे। उसके अंदर आज का जो है ना टॉपिक मेरा, और थोड़ी सी उसकी तैयारी भी करनी है। और अब्दुल्लाह बिन अम्र मरफूअन, अब्दुल्लाह बिन अम्र से मरफूअन रवायत है, मन इस्तूदिअ वदिअतन फला ज़माना अलैहि, जिस आदमी के पास कोई अमानत रखी जाए तो उस पर कोई जमानत नहीं होगी। थोड़ा सा ऊपर करके करें, मैं थोड़ी सी शरह देख लूं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। अगर किसी की कोई चीज जाया हो जाती है तो अमीन पर जमानत नहीं होगी, बशर्ते के जाया होने में उसका कोई दखल ना हो। मिसाल, मैंने आपको जो है ना 1 लाख रुपए दिया हुआ है, एक चोर आपके घर में आता है और वो जो है ना लाख रुपए उड़ा के ले जाता है। अब मैं आपसे कहूँ आप तो मेरे पैसे निकालें ना, चोर ने जो भी आपके साथ किया आप तो मेरे पैसे निकालें। तो ऐसा नहीं है, हाँ, बाकी जाया होने में इसका कोई दखल ना हो। अगर इस किस्म की कोई चीज जाया हो जाती है, और वैसे मैं आपको बताऊं कि दुनियावी कानून भी इसी पे चलता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है दीनी कानून नहीं है। अब अमूमन ये लोग क्या करते हैं, जिन लोगों ने धोखेबाजियां करके लोगों के पैसे इकट्ठे किए होते हैं, ये जाते हैं अदालत में और जाके कहते हैं जी हमारी तो कंपनी डूब गई है। अदालत क्या कर सकती है, बड़ा भी कुछ निकालेगी, रहने वहने के मकानात वगैरह वो एक दूसरे के नाम लगा देते हैं और काम खत्म। याद रखिएगा, यहाँ पे जाया होने में उसका दखल ना हो, ये वाला मामला। दुनिया में अगर पकड़ा जा सकता हो तो ठीक है, फिर लड़ाई दर लड़ाई तो करनी पड़ेगी, और अगर दुनिया में पकड़ा ना जा सकता हो तो फिर अल्लाह ने तो कह ही दिया ना कि जिसने जमीन पर किसी के नाहक कब्जा किया, कहाँ पे कहाँ तक बात जाएगी। चलिए जी, आज मुझे इजाजत दीजिए, जजाकुमुल्लाह खैर। माशाल्लाह हमारी नफरी बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह लाइव क्लासेस में। अल्लाह ताला तौफीक दे, हमारे तहज्जुद की क्लासेस में भी आप सब प्लीज आइए। तहज्जुद मैंने अपने आप को बाउंड किया है तहज्जुद के साथ, मैं आपको जो सही सही बात बताऊं, अगर मैं वो ना करती तो मेरे से भी नहीं उठा जा रहा था। तो अपने आप को बाउंड करते हैं तो बाउंड होता है, वरना बाउंड भी नहीं हुआ जाता। अल्लाह ताला आप सबकी नेक मुरादें पूरी करे, आपके नेक हाजात पूरी करे, अल्लाह आप सबके लिए आसानियां फरमा दे, और अल्लाह ताला मेरे लिए भी इस नेक काम के बदले में मेरी भी मुश्किलात हल करे। मैं भी इसी तरह क्राइसिस से गुजर रही होती हूँ, और मुझे भी आप सबकी दुआओं की बेहद ज़रूरत है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलाम अलैकुम।